हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू द Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. It's an early morning start for us here today in the Pavilion क्योंकि आज दो मैचेस हैं, इसलिए हम आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर हो गए हैं. और इस वक्त मेरे साथ Pavilion में मौजूद I've got 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding cricketing minds and 4 extremely knowledgeable panelists. Bringing up first, we have the young, dynamic, and a heartthrob, Mr. Shoaib Malik. Good morning, Shoaib. Good morning. Assalamu alaikum, everyone. Looking very fresh, even Extremely though कल रात को हम लोग कोई 1 बजे यहाँ से गए हैं studio से. And we're back this morning, early morning. Next up, I've got Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Misbah. Good morning and assalamu alaikum, Misbah. Good morning जनाब. नाश्ता जबरदस्त है, तेजी में करना मॉर्निंग पड़ा. करके गए थे ना. हाँ, मॉर्निंग करके दोबारा कर रहे हैं ना. लेकिन इस गुड मॉर्निंग उस गुड मॉर्निंग के बीच में नाश्ता अच्छा हो गया. Yes. And with that, I've got one of the finest wicket keepers, also former captain of Pakistan, also known as the man of crisis, and we call him the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Moin, good morning and assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. Good morning. Assalamu alaikum everyone. And finally, the cricket royalty in the house. Now, royalty does not like to start its day very, very early. I do. That's traditionally what we believe. But this royalty, well, this royalty is up at 5 a.m. hitting the gym and taking his long walks and then insisting on people like me to join him, which is never going to happen. Never going to happen. It gives me great pleasure to bring into the conversation the one and only Sultan of Swing and the king of all all-rounders, Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. Good morning, ji. Assalamu alaikum, everyone. Okie dokie. Let's get down to the business end of it. सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि आज आपके लिए क्या है in store. We've got 2 games in store for you. First up, we have a very special game. This is Australia versus New Zealand. This promises to be a cracker of a game because ये धर्मशाला में है and we should be looking at a big run fest here. And that's ये गेम 10 बजे शुरू होगी और फिर दूसरा आज का मुकाबला जो है वो नेदरलैंड्स बमुकाबला बांग्लादेश है कलकत्ता से दोपहर 1:30 बजे ये आपकी खिदमत में शुरू हो जाएगा. So we're going to show both of these games here on A Sports as we go along. लेकिन इससे पहले कि हम इन गेम्स के ऊपर बात करें, जरा बात करते हैं कल रात को पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के हाथों डिफीट हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में मजीद आगे जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं. टेक्निकली मौजूद हैं लेकिन अब हाईली अनलाइकली लगता है कि पाकिस्तान आगे जा सकेगा. लेकिन एक चीज़ अच्छी ज़रूर थी कल के मैच में कि पाकिस्तानी बॉयज़ ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फाइट बैक किया और आखिरी वक्त तक लड़ते रहे. दैट्स व्हाट वी रियली होप्ड एंड प्रेड फॉर कि बाबर आजम और उनके खिलाड़ी जो हैं वो जम के खेलें. वो बेशक हार हो जीत हो, बट हमें नजर आना चाहिए कि लड़कों ने जान मारी है. ये कल रात की मैच समरी लेकर आते हैं आपकी खिदमत में. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर कल पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. बदकिस्मती से 270 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम. 46.4 ओवर्स, ये वो तकरीबन बड़े क्रूशल 3 ओवर्स थे जो कि पाकिस्तान के लिए 20-25 रन एक्स्ट्रा कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट वाज मेंट टू बी. Tabrez Shamsi there picking up 4 wickets for 50. He was brought in specially for a particular role and he did that role really, really well. Jawab mein, there was a very good innings by Akram right there, 91 ki. Then Miller contributing, the captain Bavuma contributing and De Kock also contributing. But Kismati se for Pakistan, it was not meant to be. Shaheen Shah Afridi picking up 3 for 45, Osama 2 for 45, Wasim 2 for 50, and South Africa won this one by 1 wicket. Now that defeat set a major setback for Pakistan, but we still have 3 games in this World Cup. आइए ज़रा पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं. सूरत हाल उससे थोड़ी और वाज़ेह हो जाएगी हम सब के लिए. ये है पॉइंट्स टेबल अगर आप लोग देखें ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का. Now South Africa after defeating us have gone straight up top of that table, pushing India to the second position. But ये गौर से देखिए कि जो नेट रन रेट है साउथ अफ्रीका का 2.2 से ऊपर का नेट रन रेट है. So they're looking really pretty, looking very, very strong. दो मैच जो था बड़ा फंसा हुआ था, but you know they're right on top of the table right now. India number 2, New Zealand number 3, Australia is sitting at number 4. So आज जो बड़ा टाकरा है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच है और ये फिर टेबल जो है शाम तक चेंज होगा. श्रीलंका at 5, Pakistan now sit at number 6, Afghanistan 7, Bangladesh 8.
एंड इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स इन 9 and 10. याद रहे कि जो बॉटम की 2 टीमें हैं उनको अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. टॉप की जो 4 टीमें हैं वो सेमीफाइनल जो है वो खेलेंगी. कल रात को आज द पेविलियन का जब सिलसिला चल रहा था वसीम, तो बहुत सारे सवालात आ रहे थे. एंड ऑफ कोर्स फिर वही घूम घूम के बातें आ रही थी, जो बातें हम लोग करते रहे, जिन बातों पे लोग पहले भी नाराज होते रहे, हम भी उनको बड़े क्रिटिकली एनालाइज करते रहे और उनके हवाले से बात करते रहे. बट नाउ इट्स अ न्यू डे, हियर वी आर. अभी भी थोड़े से कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक अंदर से एक वो फील है कि यार बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे पे थे मगर आगे ना जा सके, क्रॉस नहीं कर सके. It wasn't meant to be, I suppose. Yeah. They tried. It was a great game last night. Close game. They needed about 15, 16 runs. They had wicket in hand. And congratulations South Africa and Maharaj and everything. ठीक है कि बाबर से एक आधी गलती हुई होंगी या जो भी हुआ होगा, वो अभी से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. वी डिस्कस लास्ट नाइट इन लेंथ, ऑल ऑफ अस डिड फॉर 2 hours अबाउट इट. अब वापस अब ये देखना है कि वर्ल्ड कप से आके आगे फ्यूचर का क्या प्लान करना है. दैट्स द बिग वरी फॉर मी. या दैट इज बिकॉज यू कल रात को भी जब गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो आपने बड़ी एक सही बात की थी कि हमें फौरन दिसंबर में जो है एक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और पर्थ में पहला टेस्ट मैच है और अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि किस नौयत की टीम वहाँ पर होगी. स्पेशली बॉलर्स का नहीं पता कौन जाएंगे. हारिस टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है, उसको पिक नहीं करते. आई डाउट ही विल गो. If he doesn't go, he should be playing first class cricket. If he's fit, they all should be. Shadab, everybody should be playing. If they're not in the squad on to Australia, they all should be compulsory playing first class cricket and developing their skill because हमें उनकी ज़रूरत है. All of these guys, हारिस हो गए या शादाब हो गए, आपकी खिदमात की ज़रूरत है अभी भी पाकिस्तान टीम को. and that's why आपका स्किल इम्प्रूव होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और हम जो आपको ये कह रहे हैं, ये आपको कोई नीचा दिखाने के लिए या कमज़ोर दिखाने के लिए नहीं कह रहे. ये हम चाह रहे हैं आप हमारी ज़रूरत है. We want to see you perform, and in order for you to perform, you need to develop your skill, which means we want you to go back to the first class cricket and collect that skill. जी शोएब, आप कुछ कह रहे थे. इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसे वसीम भाई ने बड़ा अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया अबाउट हारिस रऊफ और एनी अदर बॉलर लाइक हिम जिसको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए. जैसे हमें नहीं पता कौन से बॉलर्स हैं या हैं भी कि नहीं उस ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए. व्हाई नॉट हारिस रऊफ. अगर उसको फर्स्ट क्लास ही खिलाना है, दें उसे टेस्ट मैच. वहाँ वो जल्दी ग्रूम कर सकता है, जल्दी सीख सकता है. जैसे वसीम भाई, वसीम, you agree with that? तो I do. But उनके पास पेस भी है. For starters, he has to kind of convince himself that he wants to be a test cricketer, like good test bowler. Not कि मैंने एक टेस्ट खेल लिया तो मैं टेस्ट क्रिकेटर बन गया. No, he's got the ability. We have seen him time and time again. He's got the pace. The only problem we have been seeing from last 2-3 months is his length, especially in a longer version in ODIs and in test cricket. और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आप अगर आपकी बॉडी कंडीशन नहीं है, स्ट्रेट अवे गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया 6 घंटे 90 overs on the field, then you have to bowl at least 15 to 16 overs minimum भी. डे में अगर आपने टेस्ट में अगर आपने मिनिमम, मैंने बात की है, मिनिमम तो आप ज़्यादा करते हैं, 18 से कम करते थे यार. We have seen he bowled 10 overs और 10 overs में उनकी एवरेज स्पीड बहुत अच्छी आ रही थी. no doubt. Even last night we have seen him, वो जो कंसिस्टेंटली पेस आ रही थी. तो if he can bowl 10 overs with the average speed of 140 plus, then I guess he's ready. बाकी 80 कितने करने हैं? बाकी 80 एक बॉलर की बात हो रही है ना. या तो फिर आप 3 बॉलर्स दे दें जो वहाँ जाके बॉलिंग कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में you got to have pace to deceive a batter. Right. मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वसीम अकरम ने, आपके में स्टैट मेरे पास आए हैं, तो आई थॉट आई जस्ट ब्रिंग दोस अप बिकॉज वो अभी हम कह रहे थे ना कि कितना फर्स्ट क्लास, क्यों यंग लड़कों को फर्स्ट क्लास कितनी खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए. आपने लिस्ट ए के जो है वो तकरीबन 594 मैचेस खेले लिस्ट ए क्रिकेट के बस सिर्फ, और उसमें आपकी 881 विकेटें हैं, 881 विकेट्स. और फर्स्ट क्लास जो है वो आपने 257 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और उसमें आपकी 1042 विकेटें हैं. आपकी 1042 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास की. तो इसके बाद तो आपको बिल्कुल थक टूट जाना चाहिए था. उसके बाद आप इंटरनेशनल में आ गए, उधर भी तबाही मचा दी आपने. Yeah, but you see, the more you play as a bowler or as any sport ले लें, क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट ले लें, the better you will become.
बचने से आप लंबा नहीं चल सकोगे, जितना खेलोगे। मिसबा एंड शोएब एंड मोइन में डिस्कस कर रहे थे हम पिछले 2-3 हफ्ते से, बॉलिंग मसल्स कैसे स्ट्रांग होंगे फास्ट बॉलर के, बाय बॉलिंग। सिंपल, देयर इज नो साइंस, नो मैथ, दैट्स इट। द मोर यू बोल, द बेटर यू विल बिकम एंड योर बॉलिंग मसल विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड इंजरीज के चांसेस भी उसमें आपके कम हो जाते हैं। स्टेमिना भी आपको बढ़ेगा। बट बहुत से इतनी सारी ज़बरदस्त उस पर आपको मुझे मुबारकबाद देनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं द पेविलियन, मैं हूं फखर-ए-आलम, मेरे साथ मौजूद शोएब मलिक, मिसबाह, मोइन खान एंड वसीम अकरम। इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग दिस मॉर्निंग। एक्चुअली थोड़ी सी नींद का भी फुकतान है यहाँ पर, इसलिए माजरत चाहते हैं अगर कोई थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे हो जाएँ। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका से जो मैच हारे हैं और अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, हमने बात की फास्ट बॉलर्स की, का हारिस रऊफ को क्यों ना लेकर जाएं ताकि उनको एक्सपोजर मिले। बल्लेबाजों की बात करते हैं, बैट्समैनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ मोइन। तो अब हम देख रहे हैं कि एक नाम आ रहा है साइम अयूब का, ठीक है ना। यू गॉट दिस यंग टैलेंट, यू गॉट सऊद, यू गॉट अब्दुल्ला शफीक। सो डू वी टेक देम आउट देयर एंड गिव देम दैट एक्सपोजर जहाँ पर इतनी तेज़ विकेटों पे इतनी मुश्किल वो है, और अगर खुदा न खासा वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर हम उनको ड्रॉप कर देंगे कि ये तो किसका अच्छा ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया में कोई सीखने वाली जगह है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट पिचेस हैं, मुश्किल कंडीशंस में आप जाके खेलते हैं और आप उस पर रन कर देते हैं, तो आप यू बिकम अ बेटर क्रिकेटर, राइट। और आप दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ उसको फेस करने के लिए फिर तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पे इस टूर पे पर्टिकुलरली बिल्कुल जैसे आपने बैटिंग की बात की है, साइम बिल्कुल डिज़र्व करता है, यहाँ पे लेके जाना चाहिए। नॉट ओनली साइम, इस सीज़न में जिन लड़कों ने लाइक शान ने भी काफ़ी रन्स किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, शान भी एक कंटेंडर है कि उनको भी लेके जाना चाहिए और यंग लड़कों को ज़रूर एक्सपोजर देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत टफ कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। नॉट ओनली के बॉलर्स ही, हम जिस तरह वसीम भाई ने प्रीवियसली हमने प्रोग्राम में सुना है, बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशंस होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर आपको देना होगा यंग लड़कों को भी, यंग फास्ट बॉलर्स को भी लेके जाएं बैट्समैन के साथ साथ। ये बहुत ज़रूरी होगा, राइट। सो दैट्स दैट। नाउ वी गोना क्लोज दैट चैप्टर, विल टॉक अबाउट इट इन द डेज अहेड एज वी गो अलोंग। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो मैचेस आज हैं, दूसरा मैच जो है आज हमारा, उसकी कलकत्ता वाले मैच की बात करते हैं, नेदरलैंड्स बामुकाबला बांग्लादेश। लेट्स स्टार्ट ऑफ ऑन दिस मिसबा, लेट्स सी। नेदरलैंड्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज दिया, साउथ अफ्रीका को डिफीट दी। This has been it was a great performance by them and they've shown glimpses of really good cricket here and there. Just badqismati se they have not been able to convert them into victories. Bangladesh also at the bottom of the table, so there's this fight at the bottom of the table because हर कोई चाहता है कि वो टॉप 8 में रहे, नीचे ड्रॉप ना करे 9th और 10th प्लेस पे। कैसा है ये मुकाबला? बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। दोनों टीमें देख रही होंगी कि ये मैच एटलीस्ट उन्हें जीतना चाहिए। बांग्लादेश सोच रही होगी ये मस्ट विन हमारे लिए, हम एटलीस्ट हमें ये मैच जीतना चाहिए, जबकि नेदरलैंड्स रिलेटिवली देख रही होगी कि जिन पोजीशंस के साथ वो खेल रहे थे यहाँ उनका चांस कहीं ना कहीं बन सकता है, बिकॉज बांग्लादेश की बैटिंग जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, अगर उनको अर्ली ऑन प्रेशर में ले आते हैं और फिर उनकी बॉलिंग को नेदरलैंड उस तरीके से उनकी भी बैटिंग नहीं चल रही, बट चांसेस हैं कहीं ना कहीं दोनों टीमें फैंसी कर रही होंगी ये चांसेस कि ये मैच एटलीस्ट उनको जीतना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन दीज टू टीम्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ जी ये कैसे खेलते हैं, किस तरीके से। मुझे लगता है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी, नेदरलैंड्स प्रेशर के बगैर है, जहाँ उनको कहीं थोड़ा सा मौका मिल गया, उनके ओवरऑल जो क्रिकेट के डिसिप्लिन है, उनकी जो फील्डिंग है, उनकी बॉलिंग के डिसिप्लिन है, वो बड़े अच्छे हैं एंड दे आर ऑलवेज इन अ हंट कि हमें थोड़ा सा कोई स्लाइड सा मौका मिले अपोजिशन को अंडर प्रेशर करने का तो हम उसको ग्रैब कर लें। तो लेट्स सी हाउ बांग्लादेश प्लेज और कैसे ये मैच जाता है आज का। राइट। बेस्ट से ले रहे उनके जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं वसीम, पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बड़ा बुरा गुजरा, 115 रन उन्होंने दिए, 2 विकेटें उन्होंने ली, बट दैट्स अ रिकॉर्ड। 17 साल पुराना वर्स्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड जो है ओडीआई के अंदर वो टूटा है। He, however, is a very important player for them in their that entire squad. Yeah, this can happen to anyone. Bad day as a bowler, he went for millions, I suppose 115 to be exact in his 10th, the most expensive spell ever in ODI, I think.
And he's a proper batter, comes at number 4-5, he's averaging about 36, and then जब तक उसकी bowling का ताल्लुक है, I think his bowling economy rate and average is also very good. But other day जब इनको फड़कास पड़ी थी, तो आई थिंक वो मैंने एक्सप्लेन किया था जब आके नीचे से मैक्सवेल ने ठोकना शुरू किया कि क्रॉस सीम पकड़ के आगे बॉल कर रहे थे. क्रॉस सीम अब तब पकड़ते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इस तरह के बॉल जब विकेट पे बॉल फंस रहा हो या वेट हुआ हो. जब पहले आप बॉलिंग कर रहे हो फर्स्ट टाइम पे, तो वो तो आपने सीम पकड़ के करना है. अगर रिवर्स भी है ना, तो वो सीम से होना है. तो वो चीज़ें अभी इन्होंने सीखनी है. इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, बट वेल डन टू नीदरलैंड टीम. दे क्वालिफाइड फॉर दिस वर्ल्ड कप एंड दे मेड अ ह्यूज अपसेट सो फार. वन ऑफ द फेवरेट्स टीम को इन्होंने हराया है. सो या, द टैलेंट इज देयर. दे जस्ट नीड टू, ICC नीड टू इन्वेस्ट एज वेल in their first class structure, and they eventually can be a very good side. But I believe, Wasim, that a lot of Netherlands, Scotland, Ireland players, they go to play county cricket in UK, in England, and they South Africa, they get Australia, mostly, yeah, most of them are county cricket. South Africa में भी खेलते हैं, but अपना system होगा तो फिर different ball game है ना. ये तो अगर आप British national हो या आपकी dual nationality type की है, then you can play as an overseas. शायद आपको कम ही रखें लोग as yet. All right, we're going to talk more about that, but we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. आज बड़े दो मुकाबले हैं. It's a double header today. पहला मैच of course Australia versus New Zealand का है धर्मशाला में, और दूसरा मैच जो है वो Netherlands versus बांग्लादेश है कोलकाता में, जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे. शोएब, let me bring this to you. जो ओपनिंग है Netherlands की, वो बड़ा स्ट्रगल कर रही है. खासतौर पे उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मैक्स डाउट, उन पर बड़ा डिपेंड करते हैं, बट ही इज़ नॉट बीन एबल टू फायर अप. हमने उनकी टेक्निक पे भी बात की थी कि उनको एक प्रॉब्लम आती है और अंदर आते हुए गेंद पे वो फंसते हैं. You think this should be, the Bangladesh game should be for him the scoring game? I think Bangladesh also must have done some homework के जो भी बॉल उनको अर्ली ऑन अंदर आता है. मिसबा भाई ने एक्सप्लेन किया था हाई बैक लिफ्ट का, वो किसी को भी मसला होगा नए बॉल पे जब वो लेंथ बॉल अंदर आता है. They have the left handers. And they have, yeah, of course. And Taskin is also coming back, so हाँ, तो ये एक अच्छा मैचअप होगा उनके अगेंस्ट. और विक्रमजीत जो है उन्होंने रन्स बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, बट उसके बाद वो ही इज़ बीन इनकंसिस्टेंट. और देखिए, ओपनिंग एक ऐसी चीज़ है स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, जब वो रन्स बनाते हैं तो वो आपको मोमेंटम देते हैं मिडिल ऑर्डर्स को. रिलेटिवली दे गेट ईजियर सिचुएशन, या जब मोमेंटम मिलता है तो जो नीचे के बैटर्स हैं वो भी जो है उस मोमेंटम को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं उसको अच्छे से. तो जो ओपनर्स हैं उनका आज बहुत ज़रूरी है रन्स बनाना, और मुझे ये लगता है कि उनके मिडिल ऑर्डर्स में ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इन फॉर्म है. लेकिन अगर ऊपर से रन्स बनेंगे तो वो अच्छा जो है टोटल पोस्ट कर सकते हैं, या अगर वो चेस कर रहे हो आज के मैच में तो ये बहुत अच्छा हो सकता है. Yeah, this should be. बांग्लादेश की बात कर लेते हैं. तस्किन जो है वो वापस आ रहे हैं टीम के अंदर. बिग बूस्ट फॉर द बांग्लादेश साइड. अब बिग बूस्ट ज़रूर हो सकता है, डिपेंड्स कि अगर वो अच्छी बॉलिंग करेगा. जिस तरह शुरू के मैचेस में हमने देखा ऑफलाइन हो रहे थे थोड़े से, उससे प्रीवियसली अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे थे यहाँ पे. बट शुरू के तीनों मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ड्रॉप करके दूसरे फास्ट बॉलर को खिलाया. यकीनन एक बूस्टअप होगा. अगेन अगर पिच पे थोड़ी बहुत मिलती है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है, विद द न्यू बॉल, मे बी विल बी वेरी इफेक्टिव. और थोड़ी सी मैं बैटिंग की बात ज़रूर करना चाहूँगा. यहाँ पे हमने देखा मुशफिक और महमूदुल्लाह को बहुत नीचे खिला रहे. दोनों बड़े सीनियर प्रोज हैं, और महमूदुल्लाह पिछले तीनों चारों मैचेस के अंदर उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है. पिछले मैच में 100 भी किया. आई थिंक मुझे लग रहा है कि नंबर थोड़ा सा नीचे किया हुआ. यहाँ पे एक चांस उनको ये भी लेना चाहिए यहाँ पे कि महमूदुल्लाह जो इन फॉर्म बैट्समैन है उनको थोड़ा सा अप टू द ऑर्डर भेजें, ताकि वो मैक्सिमम बॉल्स खेल के मैक्सिमम रन्स करके दें. वो 6ठे नंबर पे पिछले मैच में खेले, उससे पहले वो 7 नंबर पे खेलते रहे. आई थिंक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उनकी बैटिंग का, और यही प्रॉब्लम नज़र आई है कि ऊपर के जितने भी बैट्समैन हैं अच्छा टोटल पोस्ट करने में नाकाम वो इसी वजह से हो रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है नीचे, फिर महमूदुल्लाह सेट होके फिर वो बैटिंग करते हैं, बट वो लेट हो जाता है उस वक्त. आई थिंक ही इज़ मैन इन फॉर्म. पिछले मैच में उनको काफी ओवर्स मिल गए थे, ऊपर कोलैप्स हो गया था तो जल्दी आ गए थे, तो उसके नतीजे में सेंचुरी उन्होंने गाड़ी है. हाँ, उनको मौका मिल गया था सेट होने का. he took his time and then he played his shots. Will the conditions in Kolkata, hot and humid weather of course, will this be something that will favor Bangladesh with the spinners? बिल्कुल. आपने आज भी देखा कि बड़ा एक तो प्रॉब्लम होता है फर्स्ट टाइम, स्पेशली अगर आपकी फील्डिंग आ जाती है तो उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो
मेरे ख्याल में बांग्लादेश को भी ये नज़र आ रहा होगा, और पिच भी आपको थोड़ी बहुत फिर स्पिन उस तरीके से मिलता है, रिवर्स स्विंग भी आ जाता है उसमें, ड्राई कंडीशंस होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीदरलैंड भी ऐसी ही कंडीशंस को प्रेफर करती है, क्योंकि बैक होम वो स्लो पिचेस हैं, उस तरह उनके स्पिनर्स भी हैं, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, पार्ट टाइमर जो एक उनका एक्रमैन करते हैं वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का आमने सामने उनका मैच है, तो आई थिंक इट्स ऑन द डे जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी उसके चांसेस होंगे। इट्स गोइंग टू बी अबाउट द डे। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश ऐसी टीम जो है वो इन कंडीशंस के अंदर जो मैंने भी सवाल किया कि उनको एक एज जो है वो मिलता है, बट कभी कभार यूँ नहीं लगता कि जैसे ये चीज़ जो है वो ऐसी टीमों के अगेंस्ट भी पड़ जाती है, वो ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर ऐड हो जाता है कि ये तो हमारे टाइप का माहौल है लेकिन इसमें हमसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा। वो बिल्कुल ऐसा होता है, और अगर देखें कलकत्ता बहुत नज़दीक है ढाका के, तो कंडीशंस जो है वो बिल्कुल ही कह रहा था कंडीशंस जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं। एंड व्हाट वी हैव सीन इन एन IPL गेम्स, तो उसमें भी देखा है कि वो ऐसी कंडीशंस हैं कि जो सूट करती हैं जो फॉर्मेशन है बांग्लादेश टीम की। तो उसमें ये है कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स जो इन फॉर्म है उनको कंसिस्टेंटली और लॉन्ग रन के लिए वो करना पड़ेगा इन अ गेम टू विन अ गेम अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन, जो कि नहीं हो पा रहा। स्मॉल ग्लिम्सेस ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही है, तो वो उनको करना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। और आई गेस आज से अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने नहीं है कि जो इन फॉर्म है वो लॉन्ग रन के लिए परफॉर्म करें इन अ गेम, और जो उनके आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि कंडीशंस भी उनको सूट करती हैं जहाँ पे मैच होने जा रहा है। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेशी प्लेयर्स टू परफॉर्म टुडे। It is a great opportunity for Bangladeshi players. So this is going to be the second game. ये आज का दूसरा मुकाबला होगा कलकत्ता में, जो 1:30 बजे जो है शुरू होगा मैच। लेकिन हम जो है ऑफ कोर्स जुड़े होंगे, जो एक बड़ा मैच हो रहा है आज। दोनों मैचेस बड़े हैं, दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह हर टीम के लिए। लेकिन आई एम श्योर क्रिकेट फैंस जो है वो गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटेड टू सी द फर्स्ट गेम व्हिच इज अबाउट टू स्टार्ट। थोड़ी देर बाद जो पहला मैच हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे वो है ऑस्ट्रेलिया बा मुकाबला न्यूजीलैंड का, और इसके हवाले से हम अब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। व्हेन वी कम बैक वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and well, we are taking you for a double header today. सबसे पहले आप जाएंगे हमारे साथ धर्मशाला, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद पहला मुकाबला शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, और फिर 1:30 बजे दूसरा मैच है कलकत्ता में नीदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश का। ब्रेक से पहले हम उस मैच की बात कर रहे थे, नीदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश। और मेरे साथ इस वक्त पेविलियन में मौजूद हैं शोएब मलिक, मिसबाह, मोइन खान एंड वसीम अकरम। वसीम, गल फिर ससुरालते आ गई। यस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये तो नेबर्स हैं, बड़े करीब करीब हैं। एक तरफ कीवीज हैं, दूसरी तरफ कैंगरूज हैं, तो जरा इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, कीवीज के ज़हन में ये होगा जो लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ, जिस तरीके से हारे, सुपर ओवर आपका हुआ टाई, देन उसके बाद बाउंड्रीज पे हारे। सो अनलकी न्यूजीलैंड, अभी तक मेरा नहीं ख्याल ICC की ट्रॉफी वो जीते हैं वर्ल्ड कप स्पेशली। सो या गुड साइड, and Australia to me peaking at the right time. Their spinner Zampa is I think 2 wickets away to go past Brad Hodge की जो विकेट थी one day ODI international में। Well done, 156 I think record. But over and all it'll be a close game. Both sides are very professional sides. So far we have seen the fielding has been on the ball every time they come out to bat or bowl, and I think टीम सदी को चांस नहीं मिलेगा बिकॉज उनकी बॉलिंग न्यूजीलैंड की ठीक जा रही है। केन विलियमसन विल ऑब्वियसली इंजरी जो उनका था, हेयर लाइन फ्रैक्चर आया उनके थंब में, जो एक रैंडम उनको बॉल लगी है। सो या इक्वली बैलेंस साइड। ऑस्ट्रेलिया मे बी स्टोइनिस इज फिट एंड सो इज ट्रेविस हेड. It's fit apparently. They might play one of them or maybe both of them in the playing 11. We don't know yet. Yep. Glenn Maxwell will be a huge threat in the middle order for New Zealand today, Misbah. Glenn Maxwell से पहले मैं Not only today, अब तो वर्ल्ड कप में हर टीम के लिए थ्रेट है। एक जिमखाना में बड़ी फेमस स्टोरी है। जिमखाना कब होता था मिड 80s में जी। तो जो भी टॉप, जब क्लब क्रिकेट वाज एट पीक, सो लाहौर की 8 टीमें उस टूर्नामेंट में टॉप की जो होती थी वो खेलती थी। जिमखाना में 2 दिन का होता था, 75 ओवर ईच, जो कि अब खत्म हो गया। करेक्ट। तो एक किसी क्लब से एक प्लेयर आया,
उसने ना लंच से पहले 100 कर दिया। उधर नासिब मीदा। मीदा अब जब मीदे की टीम से मैच हो और पूरी टीम मीटिंग, यार आज के दिन मीदा ना चल जाए, आज की जब मीदा ना चल जाए। वो 3 महीने के 3 साल मीदा नहीं चले। उधर उनकी टीम में होता है जे मीदा चल गया, मैक्सवेल का भी वही हाल है। जे मीदा चल Because गया। ये सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, he is there for that particular purpose. He's not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. That's how players like this do well regular basis because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी nation social media से। वसीम भाई, एक जो बड़ी चीज़ थी जिस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, मलिक हमेशा कहता आ रहा है कि वो उनको जब वो स्टेज मिलती है, एक सेट प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे लगता है कि सही नंबर पे भी आए हैं पिछले मैच में, और नंबर ऑफ ओवर्स क्लैरिटी थी, बहुत जल्दी नहीं आया कि जहाँ पे आके जिस तरह अगेंस्ट पाकिस्तान आया तो पहले ही बॉल पे उन्होंने वो जिस किस्म की शॉट मारी। ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म उनको मिला, प्रेशर नहीं था, रन्स ऑलरेडी काफ़ी हो चुके थे, एंड देन ही हैज़ वन वे टू गो। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में उससे डेंजरस प्लेयर कोई और नहीं। अगर ये पाकिस्तान में होता, अगर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ शॉट मार के वो आउट हुआ, ग्लेन मैक्सवेल कई मैचों में हुआ, आते ही पहली गेंद पे अजीब सी शॉट मारी आउट हो गया, ऐसे ट्रेंड और ऐसी पर्ची, और कोई ना नहीं आंदा इन्होंने। एक और चीज़ भी है, अगर हम देखें जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, एलेक्स सेल्स, जब इयन मॉर्गन कैप्टन बने 2015 में, तो वो भी कुछ शॉट्स ऐसे मार के आउट होते थे कि वो ऐसे लगता था कि इनको क्यों रखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे विजन था लीडर का कि नहीं, ये वही लोग हैं जो आगे जाके हमें मैचेस जितवाएंगे, और जिस तरह की जिस मॉडर्न डे की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं वो खेलनी है। और देखें उसका एडवांटेज क्या हुआ, इसीलिए मतलब टीम हार भी रही थी ऑस्ट्रेलिया की, और वो ऐसी शॉट्स खेल के आउट भी हो रहे थे, लेकिन दे बैक्ड हिम। और जब आप किसी को बैक करते हैं तो फिर ऐसी इनिंग्स आपके सामने आती है जो ग्लेन मैक्सवेल ने हमने देखी। जी मोइन, मैं बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। इसी वर्ल्ड कप में लाइक हमने देखा एडम जैम्पा शुरू के दोनों मैचेस बहुत बुरे तरीके से चले, बहुत बुरे, और जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर ऑस्ट्रेलिया, 13 विकेट्स, आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला यहाँ पे, जिस तरह की कंडीशंस मिल रही हैं, स्पिन ट्रैक्स हैं, और विद इन द स्टंप जो बॉल करता है उसको सक्सेस मिल रही है। तो आई थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो इस मैच में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट फिर क्रिएट करेंगे, बिकॉज इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है उनके एटीट्यूड के अंदर, आके कोशिश करें विद इन द स्टंप्स करें, जो गुगलीज हैं या उनकी फ्लिपर्स हैं, ट्राई कर रहे हैं, पूरी एफर्ट नज़र आ रही है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लियरली चेंज हो गया। हमने पहले 2 मैचेस में देखा था बिल्कुल ऑफ ट्रैक हुए थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलें कर रहे थे, बॉलें नहीं गिरी थी उनसे। आई थिंक इस तरह के जो कॉन्फिडेंस, जो अभी मैक्सवेल की भी बात की है, क्लैरिटी जब माइंड में आपके आ जाती है, आपको पता है कि आपके ऊपर टीम डिपेंड कर रही है और ये मेरा रोल है, उसमें आप फिर फुल थ्रॉटल से जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। टाइमली कम बैक किया टूर्नामेंट के अंदर, नाउ अब बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए, यहाँ से नज़र आ सकते हैं, हम प्रेडिक्ट करने के इस पोजीशन में आ गए कि they will be the number 4 team in the semi-finals. You think so? Yeah. Okay, that's ये quite मैच strong. बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए वैसे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी तीसरे नंबर पे आ गई है उस पे अपना टेबल से, पॉइंट्स टेबल के ऊपर। बिल्कुल, ये एक चीज़ हमें लग रहा है कि 10 पॉइंट वाली जो टीमें हैं वो उनका एक ब्रीदर है, बट 8 वाली जो है अभी भी उनके लिए भी हर मैच इम्पोर्टेंट है, अनलेस कि वो 10 या 12 पे पहुँचे, क्योंकि आगे एक मैच के बाद सडनली आपके लिए ऐसी सिचुएशन होगी कि वो मुसीबत पड़ गई है, अब अगले 2 जीतने। मुझे पास वो तेरी बीवी का फ़ोन आ रहा था सुबह उस माँ का फ़ोन आया अभी जिस सही गया से पहले कि तेरे चिड़का पहन वो पूछ रहे अभी तक सोए हुए लग रहे उठे। उसके लिए जो है ना वो रिंगर ऑन है, उस कॉल के लिए बजा नहीं फोन। नहीं रिंगर किसी को, he is a professional, he is on TV, he knows what to do. But you make a good point there, Misbah, that ये
टीमों के लिए जो है ब्रीदिंग मार्जिन नहीं है, जो 8 वाले हैं ना उनको सबको बड़ा सोच समझ के चलना Everybody पड़ेगा. on their toes. Yeah, everybody is on their toes. Unless you're so short qualified, you can't just take it easy. Yeah, it looks like other than South Africa and India, everybody else has to think very hard about. Over here, Pakistan can spoil a party of anyone's party. Yeah. They have to win their 3 games. Yes. And then see what happens. 3 games कम से कम and you 2 never know. मैच तो जीतने ही है ना, जो भी टीम है यहाँ पे 8 पे भी है, उनको अपनी प्लेस गारंटेड प्लेस करने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने हैं. तो जहाँ पे भी आप हारेंगे तो एकदम से प्रेशर आप पे वापस आएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. Just be all of a sudden everything will change. अच्छा क्या होगा कि आज की कौन सी टीम जीते पाकिस्तान के लिए? अच्छा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया जीते या न्यूजीलैंड जीते? यार बड़ा अच्छा सवाल है. ये मैथ किया तो आपने? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट है जी ऑस्ट्रेलिया के 6 हैं. जी, बिल्कुल. तो अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो 8 हो जाएंगे. लेकिन बेहतर ये है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया हारे. आधी कौम को जो है ना आपने पूरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया. सही बात है. सही बात है एक्चुअली. जैसे मैंने तुम्हें कहा था 5 आउट हो गए, 2 कर लो, 7 हो जाएंगे. क्योंकि पाकिस्तान अभी भी नहीं ये स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी. देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन दैट स्टोरी. प्लीज शेयर इट विदाउट टेकिंग नेम्स. विदाउट टेकिंग नेम्स. बट ये मैं थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ. इंटरनेशनल टेस्ट मैच हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच हो रहा था, बरतानिया में हो रहा था. Yes. और वसीम भी खेल रहे थे और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स उस मैच में थे. फिर अचानक एक लेजेंड ने कॉल दी. अब आगे I wasn't playing. ये मिड 82 की बात है. तो वो टेस्ट मैच में पार्टनरशिप लगी हुई थी और कप्तान इमरान भाई थे, स्किपर थे. तो शुरू करना, ये स्टोरी बाद में उन्होंने खुद ही बताई, मुनीपा भी बताते होते हैं कि वो शुरू करने लगे ओवर. तो पार्टनरशिप इंग्लैंड की लगी थी बड़ी सख्त किस्म की. तो पहला बॉल किया, दूसरे बॉल पे सीनियर प्लेयर ने कहा रुको मैंने बात करनी है. सीनियर प्लेयर ने रोक दिया रन आपके बीच में. तो एवरीबडी थॉट कि यार इसको इम्पोर्टेंट सीनियर प्लेयर, इतनी लंबी काउंटी खेले हुए हैं. उन्होंने सबको, इमरान भाई ने सबको ऐसे वो हडल में किया. तो पूछा हाँ भाई बताओ. उन्होंने कहा देखो 5 आउट हो गए, 2 कर लो तो 7 तो हो जाएंगे. तो क्या के चले गए. एक वो वाली भी तो है ना स्टोरी. कुछ कहा वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता. नहीं, एक वो भी तो है स्टोरी कि स्लिप्स खड़ी हुई थी, फिर गली खड़ी हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि गेंद जावे थे जावे वो के. बता रहे थे ये पुराने हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स, वो बता रहे थे कैंप लगा हुआ था. तो उन्होंने कहा जी इम्तियाज़ अहमद साहब बड़े ज़बरदस्त हमारे ओपनर थे और कीपर, वो कीपिंग करें. फर्स्ट स्लिप में ग्रेट सईद अहमद साहब हो, सेकंड स्लिप में कोई और नाम लिया उस मे बी आई डोंट नो गुल साहब, तीसरी स्लिप में कोई और नाम लिया और चौथी स्लिप में वो गली में वो खुद थे. तो स्टोरी बता रहे थे वो हमारे साथ. आमिर मलिक वेरी फनी, आई डोंट नो वेयर इज ही नाउडेज, आई हैवंट सीन हिम, ग्रेट गाय, गुड क्रिकेटर. तो वो भी हम सारे 5-6 यंग बैठे थे. तो वो जो हमारे कैंप कमांडर थे कहते थे ए स्लिप ते गली च मैं ते गेंद जावे ते जावे किथों. आमिर मलिक कहते कप्तान जी ताड़ी लत्तां ही चो. हम पांचों बैठे हों तो जाएं कहाँ? कहीं नहीं सिवाय ब्रेक के. लेट्स गो इनटू अ ब्रेक. वी सी यू ऑन द अदर साइड. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023. आज डबल हेडर है. अब से कुछ देर बाद हम आपको बाकायदा लेकर चलेंगे पहले मैच की तरफ धर्मशाला में, जहां पे न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से. और उसके बाद 1:30 बजे दूसरा मैच शुरू होगा, बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स. मेरे साथ इस वक्त पवेलियन में मौजूद शोएब मलिक, मिसबाह मोइन खान और वसीम अकरम. और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, ब्रॉट टू यू बाय एक्सप्रेस पावर. जी शोएब, लेट्स स्टार्ट विद यू. पहले मैच का और दूसरे मैच का. पहले मैच का आई वुड गो विद वसीम बाई ससुराल. ओके, ससुराल. एंड सेकंड मैच बांग्लादेश. ऑलराइट. मोइन जी विद वसीम भाई ससुराल. नहीं ऑस्ट्रेलिया के नहीं, कोई रास्ता ऑस्ट्रेलिया. नहीं है. एंड द अदर मैच नेदरलैंड्स. ऑलराइट, पुटी गल करेगा. ठीक है. वसीम, I'll go for Australia ससुराल. and then I'll go for Bangladesh. बांग्लादेश. मिसबाह. मैं पाकिस्तान के साथ हूँ. But that's Pakistan is not Yeah. playing tomorrow, buddy. मैं न्यूजीलैंड को इसलिए फेवर कर रहा हूँ ना, न्यूजीलैंड का जितना Oh, very sharp. न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश. New Zealand and Bangladesh. All right, and those are your expert predictions. और इसके साथ ही वक्त हुआ है player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, so what we're going to do is कि आज चूँकि 2 मैचेस हैं, 4 टीमें हैं, लेकिन प्लेयर आप लोगों ने एक ही बताना है. मिसबाह, let's start with you. Player to watch out. Conway. Conway. Okay, let's go. Wasim.
Okay, I'll go for if Travis Head play, I'll go for Travis Head. If he doesn't, I'll go for Mitchell Stark again. Okay. The same for Mitchell Stark again. All right. Moin? Mitch Marsh from Australia. Mitch Marsh from Australia. Steve Smith from Australia. Steve Smith from Australia. And those are your players to watch out for. Brought to you by Ufone. Long day of cricket. Almost 200 over, hopefully full 200 overs. Otherwise, close to 200 overs that we're going to see a lot of cricket. आपने अकेले ने लगाया कि नहीं, किसी मैंने ने बड़ा help इसके की ऊपर है? मेहनत की है. पूरी की पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, जिससे मुझे ये पूरी की पूरी जो है ना हिसाब किताब जो है वो दिया है. Good job. वैसे इधर मेरे पास बैठे हुए हैं हिसाब किताब करने वाले प्रोफेसर पटवारी जी? जी. पटवारी. और फोटोकॉपी वाले ने नवी कोठी ले ली. अच्छा, पेन वाले ने भी 10 मरले का कार ले लिया. 10 मरले तो नहीं, 2 कनाल प्लॉट लाभ रहे ने फेज 8. Sorry, Moin. I don't know why they have this thing with you. मैं देख रहा हूँ ये कन्वर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडी शो में. तो ऐसा ऐसा आप थोड़ा लेट आए हैं इसमें. आपको 2 साल बाद आपने नहीं, entry दी है. आपको मैं तो पहले दिन से आपको बता दिया था. रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली दूसरे शहरों से जब फनकार आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. दूसरे शहरों से जब फनकार आते हैं. ये देखे ना हमारा पहला, मैं तो रहा हूँ यहाँ पे, आप इन दोनों लोगों की बात कर रहे हैं. हमारे जो है ना पहले हैं पहन हो रही है, उनके 15 में. ये तो है, वो अच्छी बात है. आप मेहनत करते हैं, इट्स अ गुड थिंग. 15 उन्होंने इतनी आप मेहनत मंगवाए हैं, करते हैं, 2 इतना मेरे डेटा आप ले लिए. एनालाइज करते हैं, इतना कुछ आप करते हैं. आप यही सारे काम आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी करते हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है माशाल्लाह से पीएसएल के अंदर. सो गुड गोइंग, रियली वेल डन मोइन. वी आर प्राउड ऑफ यू. बहुत ज़रूरी. रिजल्ट ठीक आए ना है, पढ़ते ज़रूर रहना चाहिए. नहीं, आधा टाइम जो है वो ये जो हमारे मैचेस चल रहे हैं उसका हिसाब किताब लगाते हैं. आधा वो कोयटा का ही लगा रहे हैं. उधर वाली जो गड्डी है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाली. I should hope so. I hope so too as well. Anyway, gentlemen, आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है. वो ये बताना है कि नाश्ता आ गया. नाश्ता आ गया. बंद करो जी. बंद करें ना. दूसरी बारी. दूसरी दफा. एक्चुअली वो नाश्ता थोड़ी था, वो तो ऐसे ही चखा था हमने सुबह निकलते वक्त होटल से. नाश्ता तो अब आया है जो आपने जो बोला था एन आपकी तबीयत के मुताबिक. 2 पराठे ਤੁਹਾਡੇ चखने सी, 2 ऑमलेट. ऐ किहड़ा चखना है? चखना है ना यार. अब चलते हैं. We're going to take you live to the action. But gentlemen, thank you very much. Shoaib, thank you. Moin, thank you. Misbah, thank you. And Wasim, thank you. आप लोगों से मुलाकात होगी इन दोनों मैचेस के बाद आज शाम को. Tune in to the Pavilion. 8-bit Gulkan. See you on the other side.